اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر۔ میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر، کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، ہم تیار ہیں۔ بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان سوچے گا نہیں، بھرپور جواب دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا، کہا بھارت سے پاکستان کو سبق سکھانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جنگ مسلط کی گئی تو جواب دینے کے سوا راستہ نہیں ہوگا۔ بھارت نے تحقیق اور شواہد کے بغیر پلوامہ حملے کا پاکستان پر الزام لگایا، پاکستان کی بھارت کو حملے کی آزادانہ تحقیقات کی بھی پیشکش۔ دہشت گردی کی 15 سالہ جنگ میں 70,000 پاکستانی مارے گئے، 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، کہا دہشت گردی ختم ہو رہی اور خطے میں استحکام آ رہا ہے۔ پلوامہ جیسے واقعے کا پاکستان کو کیا فائدہ؟ کوئی احمق ہی اپنی کانفیڈنس سبوتاژ کرنے کے لیے ایسا فیصلہ کرے گا۔ کشمیریوں میں موت کا خوف ختم ہو گیا، افغانستان کی طرح کشمیر کا مسئلہ بھی مذاکرات سے حل ہوگا۔ بھارتی دھمکیاں اور الزام تراشیاں، پاکستان نے معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مداخلت کا مطالبہ، وزیر خارجہ نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو ہنگامی اقدام کے لیے خط لکھ دیا۔ کہا بھارت کے مطابق پلوامہ میں حملہ کشمیری نے کیا، لیکن الزام پاکستان پر دھر دیا۔ ادھر پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود کی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن چودھری قربان حسین کی پلوامہ واقعے پر پرزور مذمت، کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت پچھلے 70 سال سے مظلوم کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ عالمی برادری نوٹس لے۔ بریڈ فورڈ میں مکس مارشل آرٹس کونسل کا مسلم گلوبل چیریٹی کے لیے خطی رقم کا عطیہ۔ کونسل کے صدر نثار اسماعیلر اور ان کی ٹیم نے مارشل آرٹ کا شاندار مظاہرہ کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، ولی عہد کا دورہ پاکستان اور طے ہونے والے معاملات پر اظہار اطمینان، پاکستان کی مہمان نوازی کی تعریف۔ امریکہ کی 16 ریاستیں صدر ٹرمپ کے خلاف میدان میں آ گئیں۔ ہنگامی حالت کے نفاذ کے خلاف صدر ٹرمپ اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر دبئی میں گلف فوڈ فیسٹیول آب و تاب کے ساتھ جاری، پاکستانی اسٹالز پر تیسری روز بھی شائقین کا تانتا بندھا رہا۔ مشرق وسطیٰ میں روزانہ 5 لاکھ انڈے ایکسپورٹ کرنے والی پاکستانی کمپنی مرکز نگاہ۔ جرمنی کے شہر میونخ میں پہلی بار پاکستانی کمیونٹی کشمیریوں کے لیے سراپا احتجاج، EU پاک فیڈریشن، یورپ کے عہدیداران کی قیادت میں کمیونٹی کی بھرپور شرکت، فضا بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ کرکٹ کی عالمی جنگ شروع ہونے میں 100 دن باقی، کاؤنٹ ڈاؤن شروع لندن کے ٹریفلگر اسکوائر پہ۔ ورلڈ کپ ٹرافی کی پروقار تقریب، کرکٹ لیجنڈز کی شرکت، ننھے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر ورلڈ کپ کا بگل بجایا۔ فیشن کی دنیا عالمی آئیکن سے محروم، معروف ڈیزائنر کارل لیگرفیلڈ 85 برس کی عمر میں پیرس میں چل بسے۔ شوبز ستاروں اور ماڈلز کا آجہانی کی وفات پر اظہار افسوس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ اقرا بخاری۔ میرا نام دانش حسین۔
दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बताएंगे आपको, वो कहते थे हम उनकी आशा नहीं समझते प्यार की भाषा, हालांकि यहाँ से तो खुला था करतारपुर का रास्ता। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूँ फाइक महमूद, मैं हूँ महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले वजीर आज़म इमरान खान की बात। भारत ने जारहियत की तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, भरपूर जवाब देगा। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवाजें आ रही हैं, जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देने के सिवा रास्ता कोई नहीं होगा। भारत ने तहकीक और शवाहिद के बगैर पुलवामा हमले का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान की भारत को हमले की आजादाना तहकीकात की भी पेशकश। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवाजें आ रही हैं, जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देने के सिवा रास्ता नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान ने मोदी सरकार के जंग को हवा देने वाले इल्जामात की हवा निकाल दी। भारत की जानिब से हमले पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, भारत हमले का सोचे भी ना, ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब के सिवा कोई चारा नहीं होगा। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। वजीर आज़म का कहना था कि भारत ने हमला किया तो सोचेंगे नहीं, भरपूर जवाब देंगे। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे। मोदी सरकार की हर्जा सराई और जंग को हवा देने वाले बयानात के बावजूद पाकिस्तान का एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहरा। भारत को पुलवामा हमले की आजादाना तहकीकात की पेशकश भी कर दी। वजीर आज़म बोले, भारत सबूत दे, हम कार्रवाई करेंगे। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन आ रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? चाहते हैं खित्ते से दहशतगर्दी खत्म हो, कश्मीर के नौजवानों में मौत का खौफ खत्म हो गया है। भारतीय बेबुनियाद इल्जाम तराशियों पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। गुफ्तगू में कहा, जंग छेड़ना आसान, समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। भारत पाकिस्तान को तन्हा नहीं कर पाएगा। भारत की धमकियों से मरऊब नहीं होंगे। आपके पास कोई एक्शनेबल एविडेंस है, हमसे शेयर कीजिए, हमें बताइए और हमसे तावन का मुतालबा कीजिए। हम, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हम हर जी शऊर बात का मुस्बत जवाब देंगे, हर मंतकी बात का मुस्बत जवाब देंगे, लेकिन हम धमकियों से मरूब नहीं होंगे। और ये जो आप जलसों में तकारीर फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, और वहाँ जो एक जिसे कहते हैं ना रिवेंज और बदले की कैफियत कौम पर तारी कर रहे हैं, ये समझदारी नहीं है। किसी गलत फहमी में न रहिएगा। और नए पाकिस्तान में अगर आपने कोई धमकी या कोई ऐसी हरकत की, जैसे कहा जाता है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कोई ऐसी हमाकत की, तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में जर्मनी के शहर म्यूनिख में पहली बार पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालम का सिलसिला 70 साल से जारी है, जो पुलवामा वाक़या के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। जुल्म सितम की इस ना रुकने वाली दास्तान को दुनिया के सामने लाने के लिए जर्मनी के शहर म्यूनिख में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़ियादत EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर अंसर बट कर रहे थे। मुजाहरे में सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के कारकुन और अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि पुलवामा धमाके के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। यह धमाका ऐसे वक्त पर किया गया जब जर्मनी के शहर म्यूनिख में सालाना
सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस की हेयरिंग शुरू होने वाली थी, मगर हमेशा की तरह भारत को मुंह की खानी पड़ी और वो अपनी इस मकाराना चाल में फंस चुका है। कश्मीर में जो इंडिया की मज़ालिम है उन पे एक बाकायदा सही तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है। इंडिया के अंदर पैलेट गन्स के ज़रिए जो मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ, जिसमें तकरीबन 10,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं उनको निशाना बनाया गया और उनमें से कोई 6,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो अंधे हो चुके हैं। तो इसका मकसद कश्मीर के अंदर होने वाले मज़ालिम को बेहतर तरीके से उजागर करना और इन लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना। वर्ल्ड ब्यूरो पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जो मिंचन की सिख हाइट कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जो चपले चल रही है, इंडिया हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। 14 फरवरी का जो वाक़या उनके फौजी जो मरे हैं वो इंडिया ने खुद करवाए हैं। उनको इंडिया को पता था, वो कह रहे थे कि 2017 में ये दिलावर जो है इसको हमने पकड़ा हुआ था, तो कैसे निकल आया वो, कैसे गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गया और कैसे उन फौजियों को हलाक किया गया। पिछले 70 साल से कश्मीर में कब्जा करके बैठा हुआ है उसके बारे में, और कश्मीरी निहत्थियों को कत्ल कर रहा है। मैं कहूँगा कि इंडियन आर्मी की ये सोची समझी साजिश है और इंडियन प्रेसिडेंट की ये सोची समझी साजिश है कि ये पुलवामा अटैक हुआ है इनकी आर्मी के ऊपर। इन्होंने जानबूझकर अपनी आर्मी के बंदे मरवाए हैं, क्योंकि 18 फरवरी को हॉलैंड के अंदर इंटरनेशनल अदालत में कुलभूषण जाधव के केस की हेयरिंग शुरू होनी है, जिसकी वजह से ये अपनी आवाम का रुख है जो उधर से मोड़ने के लिए इन लोगों ने ये अटैक करवाकर अपनी आवाम का जो रुख है इस तरफ करा दिया है। Ich habe erfahren, worum es hier geht, und es hat mich sehr betroffen gemacht. Es geht um die Gegend Kaschmir und darum, dass seit vielen Jahren die Menschen dort sehr unterdrückt werden und die Frauen werden vergewaltigt, und was ich besonders schlimm finde, ist, dass die Kinder auf die Kinder geschossen wird mit Schrotflinten. शुरुका का मजीद कहना था कि मकार भारत कश्मीरियों का कातिल मुल्क है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत कर रही हैं। वो अमन पसंद कौम है। मोदी सरकार ने अगर होश के नाखून ना लिए तो ये खिता बारूद का ढेर बन जाएगा। शुरुका ने जर्मन लोगों में पंफलेट और ब्रोशर भी तकसीम किए, जिन पर गासिब भारतीय फौज की जानब से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म की दास्तानें दर्ज थी। मुजाहरे के इख्तिताम पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन म्यूनिख के सदर मोहम्मद अनवर की जानब से तवाज़ो का एहतमाम भी किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. दी हेग में आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस की समाअत। वकील खैबर कुरैशी के ठोस दलाल से भारतीय वकील सर पकड़ने पर मजबूर हो गए। खैबर कुरैशी ने अपने दलाइल में कहा कि कुलभूषण जाधव हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर है, उसके अकाउंट में तनख्वाह उसका सबूत है। भारत ने कुलभूषण को जाली पासपोर्ट जारी कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये केस कौंसलर रसाई का नहीं, अदालत से गुजारिश है कि वो भारत की दरख्वास्त मुस्तरद करे। दी हेग में आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस की समाअत का दूसरा दिन। वकील खैबर कुरैशी ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा, भारतीय वकील को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। खैबर कुरैशी ने अपने दलाइल में कहा कि भारत ने कल दलाइल के मौके को जाया कर दिया, इसने बुनियादी सवालात के जवाब नहीं दिए। भारतीय वकील ने अल्फाज के साथ खेलकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। Yesterday was a wasted opportunity for India. India fails to explain its conduct. India fails to answer serious and relevant questions.
India fails to address key issues. Instead, what happens is that we have, with respect to my friend, almost a verbatim readout from his existing pleadings. खावर कुरैशी ने अदालत को बताया कि कुलभूषण यादव हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर है। इसके अकाउंट में तनख्वाह इस बात का सबूत है, जबकि भारत ने कुलभूषण को जाली पासपोर्ट जारी किया जो उसके जासूस होने की दलील है। भारत सच छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। A man arrested on the 3rd of March 2016, crossing into Pakistan from Iran, with intent to pursue India's deadly campaign of death and destruction in Balochistan and Sindh province. As the Attorney General has already pointed out, there was a confession by Kulbhushan Yadav before a judicial magistrate, which has been repeated subsequently. India is entitled to claim that Pakistan has breached the Vienna Convention by denying consular access to Commander Kulbhushan Yadav. खावर कुरैशी ने अदालत को बताया कि कुलभूषण यादव को जिनेवा कन्वेंशन के तहत तमाम हुकूक दिए गए। यादव की सेहत के हवाले से उनकी वालिदा का बयान भी मौजूद है। खावर कुरैशी का मजीद कहना था कि वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई का हक जासूसी के तनाजुर में पहली बार इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान काउंसलर रसाई के हवाले से 1982 को तय पाने वाला मुआहदा मौजूद है। भारत जानता है कुलभूषण तक रसाई पर उसे तहकीकात के लिए पाकिस्तान से ताउन करना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए भारत ने बराह रास्त आलमी अदालत से रुजू किया। खावर कुरैशी ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि ये केस काउंसलर रसाई का नहीं है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि वो भारत की दरखास्त को मुस्तरद कर दे। इससे कबल समाअत के आगाज में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने नया एडहॉक जज रखने की दरखास्त की, जिस पर अदालत के सदर ने रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से कानून में गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने दरखास्त पर फैसला महफूज करते हुए अनवर मंसूर को दलाइल जारी रखने की हिदायत की। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी के मजबूत दलाइल से बज़ाहिर ये लगता है कि हिंदुस्तान का केस खासा कमज़ोर है, लेकिन इसके लिए हमें अदालती कार्रवाई के कंप्लीट होने और उसके फैसले का इंतज़ार करना होगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, आलमी अदालत इंसाफ, द हेग, नेदरलैंड्स। ये मुंह और मसूर की दाल। जी हाँ, हमसायों को जंग की धमकियां मगर अपनी फौज अनाड़ी। भारतीय फजाया में हादसात का सिलसिला थम न सका। कर्नाटका में मशकों के दौरान दो तैयारे आपस में टकरा गए। एक पायलट हलाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान को जंग के लिए ललकारने वाला भारत अपनी फजाइया की ठीक से तरबियत न कर सका। भारतीय फजाइया के पायलट्स का अनाड़ीपन। मशकी परवाजों के दौरान 2 तैयारे गिरकर तबाह हो गए। हादसे के नतीजे में एक पायलट हलाक, 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा मशकी परवासों के दौरान फजा में तैयारों के आपस में टकराने के बाइस पेश आया, जिसके बाद तैयारों में आग लग गई। भारतीय वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमन ने भारतीय फजाइये के अनाड़ीपन पर चुप साध ली। वाक़े का इल्म होने से ज्यादा कोई बयान ही जारी न किया। हादसा भारत में एयर शो के आगाज से 1 रोज पहले पेश आया है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भारतीय धमकियों पर करारा जवाब देने पर खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। पूरी कौम भारत के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। जासूस कुलभूषण की दहशतगर्दी पर मुंह छुपाता भारत एक तरफ आलमी अदालत में रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ गीदड़ भभकियों से पाकिस्तान को डराने की कोशिशों में भी मसरूफ है। भारतीय मीडिया हो या इंतहा पसंद लोग, हर तरफ पाकिस्तान मुखालिफ माहौल बनाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भारतीय धमकियों पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत सुन ले, अगर उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज जो इमरान खान साहब ने जो
खिताब किया हुआ है, जो इंडिया हमें बार बार धमकियां दे रहा है, और ये गलती ना करे वरना बहुत पछताएगा। आज जो इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है, मैं समझता हूँ उन्होंने इंडिया को भरपूर इस चीज़ का जवाब दिया है। इंडिया और इंडिया का मीडिया जो प्रोपोगेंडा कर रहा है, उनकी अपने अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे, और कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत इन्होंने की हुई है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन ये लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज बड़ा कैलकुलेटेड और मेजर्ड जो है कौम से खिताब करते हुए इंडिया को ये पैगाम दिया है कि अगर आपने मैली नज़र से पाकिस्तान की तरफ देखा तो पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, तो उसके जवाब में इमरान खान ने जो उनको जवाब दिया है वो हम उसका पूरी सपोर्ट करते हैं, और इंडिया को पाकिस्तान को ऐसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो जो जंग के बातें करता है, उसको आज इमरान खान ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही अच्छा जवाब है। जो पूरी मैं समझती हूँ कि इंतहा पसंदी कहीं भी की जाए, किसी मुल्क में की जाए, वो नाकाबिले कबूल है। और आप देखें, हम यूके में रहते हैं, यहाँ पे एक ज़रा सी भी बात कहीं से कोई थोड़ी सी भी खबर मिले तो ये पूरी जो गवर्नमेंट है वो एकदम अलर्ट होकर उस पर काम करना शुरू कर देती है। मैं समझती हूँ कि अगर कुलभूषण जो है दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है तो उसको सजा मिलेगी भी। लंदन में 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि इमरान खान ने आज के खिताब में भारत पर वाजे कर दिया है, अगर इसके पास कोई सबूत है तो सामने लाए, वरना हम हर तरह से मुकाबला करने को तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान के ओवरसीज जितने भी हैं वो पाकिस्तान के इस हक में है कि उसे सरेआम फांसी दी जाए, क्योंकि उसने पाकिस्तान में बहुत जुल्म किया है, गरीब आदमियों को मारा है, और वो पाकिस्तान इंडिया की शय पे उसने सारा काम किया है। बजाय इसके कि इस पे इंडिया वाले माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें, तो और इसके मुकाबले में अगर वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं या उसके खिलाफ बोलें, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया है, और उसने खरा टू द पॉइंट बात की है कि अगर उनके पास हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर उसने ऐसी कोई बात की है तो वो सामने लाएं। जब तक इंडिया कश्मीर में जुल्म बर्बरियत ख़त्म नहीं करेगा, उस वक्त तक इसी तरह के हमले उसकी फ़ौज पे, उसके शहरियों पे होते रहेंगे। ये पाकिस्तान नहीं करवा रहा, और ना पाकिस्तान को ज़रूरत है इस काम की। इस वक्त जितनी भी ये सारा काम जो है जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, और ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इंडियन आर्मी वहाँ से जम्मू कश्मीर से निकलेगी नहीं और जुल्म बर्बरियत ख़त्म नहीं करेगी। शहरियों का कहना था कि भारत को 65 की जंग से सबक सीखना चाहिए, हमारी पूरी कौम ही फौज है। पाकिस्तान कल भी कश्मीरियों की हिमायत करता था और आइंदा भी करता रहेगा। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों ने इमरान खान की आवाज़ पर लबैक करते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान को धमकियाँ देना बंद कर दे। अगर भारत ने धमकियां बंद ना की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन चौधरी कुर्बान हुसैन कहते हैं, पुलवामा वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मकबूजा कश्मीर में पिछले 70 साल से जारी मजलूम कश्मीरियों की शहादतों की भी मजम्मत करता हूँ। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी से बात करते उनका मजीद क्या कहना था। अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले की साफ शफाफ तहकीक कराए, उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पुलवामा के मुकाम पर एक बहुत बड़ा खुदकश हमला हुआ है, जिसमें बहुत सारे भारतीय फौजी मारे गए हैं। इस कत्लाम की हर पुरअमन शहरी मजम्मत करता है, ना सिर्फ इस कत्लाम की बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पिछले चंद दहाइयों से जो 1.25 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इन सब की हम मजम्मत करते हैं, जिस किसी ने जो भी इनमें इन्वॉल्व है। रहा मामला ये पुलवामा के इस इंसिडेंट का, तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और हम तो ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को जैसे अदारे को आकर के इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात के बाद ये जब साबित हो जाए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है तो बैनुल क़ौमी सतह पर उसके मुतल्लिक़ एक एक्शन लिया जाए। अभी ये इल्ज़ामात बराह इल्ज़ामात जो है ये इलाके के अमन के लिए भी ख़तरनाक है, और ये निहायत ही बचगाना हरकत है कि किसी तहकीक के बगैर पाकिस्तान को या किसी दूसरे मुल्क को उसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराना।
मकबूजा कश्मीर में धमाकों के बाद कश्मीरियों की जिंदगी तंग किए जाने पर बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तानियों ने जुमे को बर्मिंघम कौंसलेट के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये जो पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम पाकिस्तानी उनकी बरजोर मज़म्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के बगैर भारत का इल्ज़ामात लगाना जो है बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। अब हम ये समझते हैं कि हम इस वक्त जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ और पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना जो है वो खड़े हैं। पुलवामा इंसिडेंट के बाद भारत में, जम्मू में, कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदू ने कश्मीरी मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया हुआ है। हमारी कश्मीरी बहनों को गर्ल्स हॉस्टल से निकाल कर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और कई देहातों के सरपंच ने कहा है कि यहाँ से कश्मीरी मुसलमान चले जाएं। तो ऐसी स्टेटमेंट जो इंतहा पसंद हिंदू की तरफ से आ रही है कि वो हमारे कश्मीरी मुसलमानों के घरों को, बाज़ारों को, खेतों को, दुकानों को जला रहे हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मोदी को बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी 8 लाख फौज कश्मीर में शिकस्त खा चुकी है। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में जो भारतीय फौज पर हमला हुआ और कई उन भारतीय जो है वो फौजी मारे गए हैं, उसके बाद हिंदुस्तान ने जो जंग की धमकियाँ देना शुरू की हैं, ये किसी के मफाद में नहीं है। जंग जो है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और दुनिया को भारत के इन जंग की धमकियों का नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि दुनिया के जो मफादात हैं इस खित्ते के अंदर वो महफूज नहीं हैं और मसला कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान जो है वो जुल्म और बर्बरियत का बाजार उसने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर चौधरी लतीफ़ अकबर और मतलूब इनकलाबी के एजाज़ में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनों और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम लंदन में एक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खसूसी चौधरी लतीफ़ अकबर ने अपने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा है। पीपल्स पार्टी ने कश्मीरियों के हकूक़ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई। हुकूमत को पोजीशन जमातों के साथ मिलकर इस पर ठोस हिकमत अमली वाज़ेह करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है उसको हाईलाइट करना था और जिस तरीके से वहाँ पे मैसेकर हो रहा है और बिलखसूस पुलवामा के वाक़े के बाद जम्मू गुजर नगर में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, उनकी गाड़ियों को जलाया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, मिस हैंडल किया गया। इसी तरीके से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है नौजवानों को गिरफ़्तार करके उन पर तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। और इंडिया में जो हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़ेर तालीम है उनको जो है वहाँ पे उनका मुआफ़सा किया गया हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसकी जानब से। हमारे एक बच्चियों का एक देहरादून के अंदर एक हॉस्टल है, उस पर उन्होंने घेराव किया गया। वो मैं अभी देख रहा था कि वहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात रही है कि किसी तरीके से हमारी जो है ये मदद की जाए। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम इश्यूज़ को अक़वाम आलम देखे और कश्मीर पर होने वाले जुल्म को बंद कराए और कश्मीर को उनको राइट ऑफ वोट वो दिलाया जाए। और पीपल्स पार्टी इस पर अपना जो रोल है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला अदा करें। दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी है। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भुट्टो ख़ानदान ने दी हैं। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त जो जुल्म जो इंडिया ढा रहा है उसका नतीजा निकलने में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 5 फरवरी का एक बहुत बड़ा मुजाहरा यहाँ पर हुआ है, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खिताब किया है और पार्लियामेंट के अंदर जो खिताब हुआ है, इस चीज़ की अलामत है कि कश्मीर की जो काज है जो 71 साल से लड़ी जा रही है। लतीफ़ अकबर साहब ने पीपल्स पार्टी बरतानिया में जो एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, इससे पीपल्स पार्टी बरतानिया में एक जान पड़ गई और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। आखिर में कश्मीर के शोहदा और जमहूरियत के शोहदा के लिए फातह खाने भी की गई। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ولی عہد کا دورہ پاکستان اور طے ہونے والے معاملات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور پاکستان کی جانب سے کی جانے والی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ دارالحکومت ریاض میں قصر یمامہ میں منعقد ہونے والے اجلاس میں ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران صدر پاکستان عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ $20 بلین کی سرمایہ کے شعبہ جات کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی، جبکہ پاکستان کی جانب سے والہانہ استقبال اور مہمان نوازی کے چرچے کا بھی کابینہ اجلاس میں ذکر کیا گیا۔ سعودی عرب میں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیاسی، سماجی، ادبی اور مذہبی جماعتوں کے اراکین نے شرکت کی۔ تفصیلات ریاض سے عمیر علی کی رپورٹ میں دیکھیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پاک سعودی تعلقات کو نئی جہت دینے کے حوالے سے جمعیت اہل حدیث نے ریاض میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ جمعیت اہل حدیث ریاض کے امیر مولانا عبد المالک مجاہد نے کہا، سعودی عرب پاکستان کا درینہ دوست ہے، جس سے پاکستانی عوام بھی جذباتی اور مذہبی عقیدت رکھتے ہیں۔ قیدیوں کی رہائی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جناب محترم عمران خان صاحب کا، اور ہم اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ویزا فیس جو ہے جو کم ہوئی ہے، خاص طور پر وزٹ ویزا، میرا خیال ہے جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے ہمارے عزیز اقارب وہ سب کے سب آئیں، اور وہ جو تقریباً کم و بیش 3000 کی فیس تھی اس کا کم ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں سفارتکاروں کا بہت بڑا ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے، ہمارے سفراء کو، ہماری حکومت کو۔ اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، کافی پرانا چلا آ رہا تھا، لیکن الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ کریڈٹ دے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس حکومت کے کارناموں کے اندر یہ بات جائے گی کہ ویزا فیس جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خالد اکرم رانا، حافظ عبد الوحید اور دیگر نے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں اسلامی ممالک مل کر ترقی کی نئی منزل طے کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سعودی عرب میں مقیم ورکرز اور جیلوں میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے لیے ولی عہد محمد بن سلمان کو کہا، اس سے انہوں نے اوورسیز کمیونٹی کے دل جیت لیے ہیں۔ ہمارے لیے ایک بہت ہی مسرت کا موقع ہے، جس میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے تو آج جو قیدیوں کا مسئلہ ہمارا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہمارا ویزا کام ہوا ہے، جو ایک پرابلم ہوتی تھی اپنے ماں باپ کو کسی کو بلانے کے لیے یہاں پہ، تو ویزے کے لیے جو اقدام کیے بہت اچھے کیے انہوں نے۔ یہ دونوں ملکوں کا معاہدہ ہے، ہاں جی، اس میں دونوں ریاستیں جناب، اور جس گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا ہے یہ بہت کم ہوا ہے، اور جس طرح عمران خان نے ان سے التجا کی اور جس انداز میں پاکستان کی جو ہے لیبرز کی ہاں جی نام لیا، یہ پہلے مطلب سفارتی آداب سے ہٹ کے انہوں نے کیا، لیکن آگے سے جو ان کا ریئیکشن تھا کمال کا تھا، وہ ریئیکشن جس میں انہوں نے کہا ہاں جی میں پاکستان کا ایمبیسڈر ہوں سعودی عرب میں۔ جو ایک پورے ایشیا میں ایک جو میسیج گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو دوستی ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے، جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جنہوں نے اس ملک کی اکانومی میں اپنا بہت بڑا ایک کردار ادا کیا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ایک جسچر کیا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ایک جو برادرانہ تعلقات ہے اس کو مزید تقویت ملی ہے، اور ہمارے یہ تعلقات 7 دہائیوں سے ہیں، جس کی مثال شاہ فیصل کا استقبال سے لے کے پھر اس کے بعد ملک فہد صاحب، پھر ملک عبداللہ اور سلمان صاحب کا جس طریقے سے استقبال قوم نے کیا تھا، آج اسی طریقے سے قوم نے پھر اپنے اس عظیم ملک کے قائد کو ویلکم کیا ہے۔ شرکاء نے پاک سعودی تعلقات کو نئی بنیادوں پر استوار کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انگلینڈ کے وزیر تجارت لائم فاکس نے فلسطینیوں کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ انگلینڈ کے وزیر تجارت نے کہا ہے کہ جب انگلینڈ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا تو فلسطینی تاجروں کو معاہدے کے جاری رہنے سے فائدہ ہوگا۔ معاہدے پر انگلینڈ کے وزیر تجارت اور فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خزانہ نے دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق دونوں ممالک انگلینڈ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی اسی طرح تجارت جاری رکھ سکیں گے۔ امریکہ کی 16 ریاستوں نے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کے خلاف صدر ٹرمپ اور ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ مقدمہ کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل نے ریاست کے شمالی ضلع کی وفاقی عدالت میں دائر کیا ہے، جس میں دیگر 15 ریاستوں کی حکومتیں بھی فریق ہیں۔ مزید تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔
मैक्सिको दीवार का मसला सदर ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया। दीवार बनाने के लिए शटडाउन किया लेकिन कामयाब ना हुए। अब इमरजेंसी लगाई तो अपोजिशन अदालत में चली गई। ट्रंप की इमरजेंसी के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाली रियासतों में कैलिफोर्निया के अलावा कोलोराडो, कनेटिकट, डिलावर, हवाई, इलिनॉय, मेन, मैरीलैंड, मिनेसोटा, न्योडा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरिगन, वर्जीनिया और मिशिगन शामिल हैं। 16 रियासती इत्तेहाद ने सदर ट्रंप के खिलाफ यह मुकदमा प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर दायर किया है, जो हर साल फरवरी के तीसरे पीर को अमेरिका के साबिक सदूर को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। मुकदमे के दरख्वास्त गुजार हावियर बसेरा का कहना था कि उन्होंने सदर को अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोकने के लिए अदालत से रजू किया है। मुकदमे के इंदराज के बाद एक बयान में कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदर टैक्स देने वालों के वो पैसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कांग्रेस ने कानूनी तौर पर रियासतों के अवाम के लिए मुख्तस किया था। व्हाइट हाउस ने हंगामी हालत के नफाज का हुक्मनामा अदालत में चैलेंज करने पर अभी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, लेकिन सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते इमरजेंसी के नफाज का ऐलान करते हुए कह दिया था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका ये हुक्मनामा अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में गल्फ फूड फेस्टिवल आबोताब के साथ जारी है। पाकिस्तानी स्टॉल्स पर तीसरे रोज भी लोगों का बेपनाह रश मौजूद है। गल्फ फूड फेस्टिवल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अंडा और मुर्गी पालने वाला आइडिया भी खूब पॉपुलर हो रहा है। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान अंडे इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंच गए। दुबई में जारी गल्फ फूड फेस्टिवल में तीसरे रोज भी पाकिस्तानी कंपनियों के स्टॉल्स मरकज़े निगाह बने रहे। ये फूड फेस्टिवल वज़ीर आज़म इमरान खान के इस आइडिया को तक़वियत देता है कि अंडे और मुर्गियां पालने से मुल्की मईशत को ठीक किया जा सकता है। इस फूड फेस्टिवल में पाकिस्तान की इस कंपनी का स्टॉल भी मौजूद है, जो रोजाना की बुनियाद पर 5 लाख अंडे मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान से हम वी आर द फर्स्ट एक्सपोर्टर फॉर टेबल एग्स, जो कि हमने स्टार्ट किया कुछ साल पहले, एंड वी प्रोड्यूस अराउंड 500,000 एग्स अ डे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त 100% एक्सपोर्ट्स पे हैं इन द UAE, अदर GCC कंट्रीज़, इवन इनटू फार ईस्ट। और हमारा ये इतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। एज द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड अबाउट द एग्स एंड दीज प्रोडक्ट्स, इसमें पोटेंशियल बहुत है। We support the government in this regard to have a proper export policy for this sector. पाकिस्तानी फूड कंपनियों को इस नुमाइश में पहले की निस्बत इस बार काफी पजीराई मिल रही है। पाकिस्तानी नुमाइशकार बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं। तो लगातार हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले शारजाह में करते थे, अभी यहाँ आते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। UAE की मार्केट है, उसमें हम अगर देखें तो जो शेयर है हमारी कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का और अदर एंड पे इंडियंस का, तो ओवरऑल कुछ 70% शेयर है इस मार्केट के अंदर। इधर वो इंडियंस हों, मुस्लिम्स हों या पाकिस्तानी मुस्लिम्स हों, तो उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट जैसे हमारे पास देखें 2 कैटेगरी हैं। एक हमारी है रेडी टू ईट और रेडी टू कुक, जिसके अंदर हम चिकन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास वेजिटेबल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हमें जो एडवांटेज देती है यहाँ पे कि हम इंडिया की जो मार्केट है, इंडिया के जो जितने भी यहाँ पे लोग माशाल्लाह रह रहे हैं, उनको भी हम केटर कर रहे हैं और अपनी पाकिस्तानी मार्केट को भी केटर कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में 120 ममालिक की 5000 फूड कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 56 सरकारी और 50 से ज्यादा निजी पाकिस्तानी फूड कंपनियां भी इस आलमी नुमाइश में शरीक हैं। 4 रोज़ा फूड फेस्टिवल 21 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 198 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 1 लाख के करीब अफराद शिरकत करेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सदर मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसलर निसार स्माइलर और उनकी रेडियो की टीम ने खती रकम मुस्लिम ग्लोबल चैरिटी नेल्सन के सरबराह फजलुर रहमान खान के हवाले कर दी। इस मौका पर मिक्स मार्शल आर्ट्स के सदर निसार स्माइलर की सरबराही में मार्शल आर्ट्स का खूबसूरत मुजाहरा भी पेश किया गया, जिसे देखकर हाजरीन लुत्फ अंदोज होते रहे। तफसीलात ब्रैडफोर्ड से वकार बाबर की इस रिपोर्ट में।
मिक्स मार्शल आर्ट्स के सदर और मकामी रेडियो के चेयरमैन निसार स्माइलर और खवातीन प्रेजेंटर्स पर मुश्तमिल उनकी टीम ने, जिसमें शाहिदा मसूद, डॉक्टर नजमा और आबदा हक शामिल हैं, 26,000 पाउंड की रकम का चेक फजल रहमान खान के हवाले किया। इस मौके पर फजल रहमान खान का कहना था कि ये रकम ज़ल्ज़ले से मुतासरा गरीब खवातीन की फलाह बहबूद और यतीम बच्चियों की शादियों पर खर्च की जाती है। उन्होंने ये रकम जमा करने पर तमाम टीम का शुक्रिया अदा किया। इस वे 4 सेंटर चल रहे ने डायलिसिस मशीन है, एक मशीन जी ना 15-15 लाख की 4 मशीन की यूनिट होंगी अल्लाह की मेहरबानी नाल। 3 ਜਿਹੜੇ सेंटर ने मुकम्मल ने और चौथी दे वास्ते मैं जा रहे ने कोई दिन बाकी ने। ये ਜਿਹੜੇ ना गुर्दे दी मशीन ने डायलिसिस इंग्लिश इन्होंने आखते ने, गरीब लोगों के वास्ते बिजनेस नहीं। मैं भी जड़ा जांदा अपने खर्चे ते जांदा, मेरे नाल बेटियां काम कर दिया ने, कुछ आईयां ने कोई नहीं आईयां। फी सबीलिल्लाह मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करदा कि इन्हां दे अपने घर दे काम छोड़ के और यह जड़ा काम ने ना असी कर दिया। इस मौके पर मिक्स मार्शल आर्ट्स का खूबसूरत मुजाहरा कराटे मास्टर्स निसार स्माइलर की सरबराही में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी नियात बरतानवी नौजवानों के अलावा बरतानवी खिलाड़ियों ने भी भरपूर शिरकत की। 4 साल बच्ची आमना शाहिद ने हाथ से 3 टाइलें तोड़ने का खूबसूरत मुजाहरा किया। तैयब महमूद ने हाथ से मार्बल की 10 टाइलें तोड़ी, जबकि शाहिद महमूद ने 1000 किलो पर लेटकर सीने पर रखी गई 4 ईंटें तोड़कर बरतानिया में नया रिकॉर्ड कायम करके हाजरीन को हैरान कर दिया। कराटे का मतलब है सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाना है। और कुछ लोगों को ये नहीं पता ग्रेडिंग क्या होती है। डान ग्रेडिंग जो होती है ना, वो ये होती है कि अगर 5th डान के लिए जा रहे हैं तो उसको 6th डान के लिए 6 साल इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उनकी उम्र इतनी नहीं होती, वो अपने आप को ग्रैंड मास्टर बने बैठे हैं। तो लेकिन हमें काफ़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की। और यहाँ पर अंग्रेज़ लोग जो हैं जितने भी हैं, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और जितने लोग हेल्प करते हैं हमारे साथ उन सब का भी बहुत शुक्रिया। Yeah, it's absolutely fantastic, particularly to start at an older age, but you don't have to be young. Karate's for all ages. It's absolutely fantastic. It gives people confidence. Certainly as a woman, sort of walking down the street, it's really good to have that confidence and be aware. Really enjoying it. ਆਫਤ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रेडियो पैगाम की टीम ਨਾਲ तावन करते। निसार स्माइलर ने लकड़ी के ब्लॉक तोड़ने का मुजाहरा किया, जबकि डेरी, जीनस, गेरी, जॉन, मिस फातिमा और खुरम शहजाद ने सेल्फ डिफेंस के तरीके बताए। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तानी नौजवान बरतानिया जैसे मुल्क में जहां मुख्तलिफ शोबाजात में अपना लोहा मनवा रहे हैं, वहीं खेलों में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, हडर्सफील्ड। सहराए अरब ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सऊदी अरब के इलाके तबूक में बर्फबारी, रियाज, दमाम, मदीना समेत मुतादिद शहरों में आज सर्द तरीन रात होगी। सऊदी अरब के तबूक रीजन में 2 रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला जारी था, जिसने आज जोर पकड़ लिया। सहराई इलाके में हर सू बर्फ की सफ़ेदी छा गई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी हुई है। तबूक, मदीना मुनव्वरा, दमाम और दारुल हुकूमत रियाज समेत दीगर शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे आ गया। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।